everyone, welcome to School Room. In our today's session, we are going to start with Chapter 2, Acid, Base and Salt for Class 10. So without any delay, let's get started. As you might have learned earlier about acid, base, so let me recall that points. Number 1, acids. Acids are generally sour and bases are bitter. Like if I tell you in Hindi, sour means khatta and bitter means kadwa. That's the basic difference between the taste of acid and base. Then acids are generally liquid and solid at room temperature. So they are solid or liquid. है ना? And bases are also solid or liquid. They can be in gaseous state. That is wrong. So they are also the same. There is no difference here. Then acids are corrosive. जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये कोरोसिव होते हैं, ये भी कोरोसिव होते हैं. They contain H plus ions. So they have H plus ions in there. And they contain OH minus ions. So that's the difference here in the chemical formula, you can say. Then they are soapy. When you rub them on between your fingers, you'll feel a bit of soapiness in that. But bases aren't soapy. They aren't soapy. इसमें आपको when you rub, you will not feel any soap-like thing on rubbing. Then they are good conductor of electricity. They conduct electricity, that is, they allow electricity to pass through them. Same is the case with bases, but they conduct electricity when dissolved in water, because then only the ions get dissociated and then they conduct electricity. Now we'll study more about them, but before that we'll have to study something more important, that is acid base indicator. So what's an acid base indicator? Something which indicates is known as indicator, है ना? Something which indicates is known as indicator. So the thing which indicates whether a substance is an acid or a base. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें बता रही है कि ये substance acid है या base है, by doing some change in itself is known as acid base indicator. Now before that, one more topic I forgot, that is compounds are basically classified into 3 categories. हमने elements पढ़ा था last in class 9. We studied elements and compounds. Elements were divided into 4. That was metals, metals, non-metals, metalloids. They were divided basically in 3, but one more category is there, inert gases, है ना? तो ये सारे होते हैं elements. अब compounds, they are divided into 3, that is acid, base and salt. And in this chapter we study this, है ना? तो अभी मैंने आपको एसिड बेस का रिकैप तो दे दिया थोड़ा सा. अब मैं आपको बताऊंगी उसके इंडिकेटर्स के बारे में कि हमें पता कैसे चलता है ये सब्सटेंस एसिड है, ये बेस है. तो उसके लिए होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, है ना, which tell us whether the substance is acid or a base. So there are basically 4 types of indicators. Number 1, अभी हम on the basis of occurrence पढ़ रहे हैं.
टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स अभी हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस हम इंडिकेटर्स के टाइप पढ़ रहे हैं। नंबर 1 इज नेचुरल इंडिकेटर, जो इंडिकेटर नेचर में अगर होते हैं, है ना। The indicators which we get from nature are known as natural indicators. For example, wait. So you can just note these down, and these will be your notes, and they will be very helpful. So you can just take the screenshots of the video and then note them down, or else you can note them side by side just like I am writing in that same speed, है ना। सो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जो इंडिकेटर्स हमें नेचर से मिले वो नेचुरल इंडिकेटर, दिस इज क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं लिटमस। ये लिटमस कैसे ऑब्टेन होता है? ये एक एनिमल है ना, नॉट अ एनिमल, सॉरी, इट्स अ प्लांट। ये एक प्लांट है बिलोंगिंग टू थैलोफाइटा डिवीजन, जिससे भी एक्सट्रैक्ट। अब प्लांट का नाम क्या है? लिचन। सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन प्लांट। क्या होता है, इसको हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये अब प्लांट क्या है? नेचुरल है, तो नेचुरली अकरिंग है ये भी। ये क्या है? पर्पल कलर का होता है, पर्पल डाई होता है सॉल्यूशन इसका। बट पेपर जो होते हैं वो बेसिकली रेड और ब्लू कलर का आता है ना। और दूसरे टाइप का होता है टर्मरिक, दिस इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। देन कैबेज। Now that green one cabbage is not an indicator. The red cabbage which is obtained, that is an indicator. Okay. अभी मैं एक एक के बारे में बताऊंगी। Then we have petunia flower. Then geranium. ये सब फ्लावर्स हैं जो कि अगर हम इन्हें एसिड या बेस में डालें तो ये कुछ चेंज शो करते हैं, जिससे वी कम टू नो दैट दिस सब्सटेंस इज एसिड एंड अनदर इज बेस। अभी मैं एक एक के बारे में आपको डिटेल में बताऊँ, एंड आई विल गिव यू अ टेबल फॉर दैट, है ना। अभी हम दूसरे टाइप पे आ जाते हैं पहले, दैट इज सिंथेटिक, या फिर आप इसे बोल सकते हो आर्टिफिशियल, विच इज़ मैन मेड, है ना। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स ये नेचर में नहीं होते हैं, इसको ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। सिंपल सा है तो, है ना। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, द इंडिकेटर्स विच आरंट नेचुरल बट मैन। ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स हैं मिथाइल orange, this is a chemical which is made in factories, okay. Then phenolphthalein, methyl orange, ठीक है ना, phenolphthalein। ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। देन वी कम टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज olfactory इंडिकेटर्स। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि स्पेशली हमें चेंजेस जो है शो कैसे करते हैं, अपनी स्मेल चेंज करके, दे चेंज देयर स्मेल, है ना। अभी जो हमें पहले वाले पढ़े, आई टेल यू व्हाट दे डू। हम इनका स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं बिकॉज दे चेंज देयर स्मेल, दे हैव डिफरेंट स्मेल इन एसिड एंड डिफरेंट इन बेस। इसकी एग्जाम्पल है क्लॉव, अनियन,
vanilla essence. Okay, then we come to the fourth type, that is universal indicator. ये थोड़ा सा अलग नया सा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बारे में हम अभी आगे चैप्टर में और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। ये वो इंडिकेटर है जो कि हमें बता देते हैं, हर टाइप के सब्सटेंस के बारे में बता देते हैं, है ना। They let us know whether it's a base or acid, and also whether the given substance is weak or strong in nature. अब वीक और स्ट्रॉन्ग मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। अभी हम एसिड बेस के टाइप भी पढ़ेंगे ना थोड़ा सा, तो उसमें आई विल टेल यू दिस, you can note this till this type. Okay, now let me tell you first of all weak and strong acid and base, ये वो टर्म्स है जो कि यूज होंगी चैप्टर में, तो आई वाज जस्ट टेलिंग यू व्हाट ऑल इज दिस। एसिड्स वाले वीक एसिड्स वो एसिड होते हैं जिसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इज लेस, इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इज मोर। सेम इज द केस विद बेस, बस इसमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इज लेस, इसमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इज मोर और हाई, ठीक है ना। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बेस। क्लियर? नाउ लेट मी टेल यू सम एग्जांपल्स मोर, है ना। एक और पॉइंट, वीक आर ऑलवेज ऑर्गेनिक and strong are always inorganic, that is ये हमें नेचुरल सब्सटेंसेस में मिलते हैं और ये नेचुरल सब्सटेंसेस में नहीं मिलते हैं ज़्यादातर। फॉर एग्जांपल ऑक्जेलिक एसिड, है ना, ये एक नेचुरल सब्सटेंस में पाया जाने वाला एसिड है। देन वी हैव टार्टरिक एसिड, ये वी फाइंड इट इन दिस टर्मरिन, टर्मरिन यानी कि इमली, है ना। ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन टोमेटो। I hope you are getting this what I am telling you. So this was a kind of short recap of what you have studied. Now we'll come to the main chapter of ours, that is studying about the chemical properties of acid and base. उससे पहले let us know the different changes which acid base indicators show while they are in acid and base respectively. So here I will be writing the name, ठीक है ना। इधर हम लिखेंगे नेम सब्सटेंस का, here we will be writing the natural color, here we will be writing the, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसिड में क्या कलर होता है उसका और बेस में क्या कलर होता है। सबसे पहले आ जाते हैं लिटमस पेपर पे, इसका नेचुरल कलर है ब्लू, जब एसिड में डालते हैं तो इट टर्न्स रेड। और अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डाला, जब हमने इसको एसिड में डाला इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन ब्लू लिटमस इज एडेड टू बेस कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, ठीक है ना। ब्लू कलर ही रहेगा। एंड व्हेन द लिटमस पेपर इज ऑफ रेड कलर देन वाइस वर्सा विल हैपन, रेड में यहाँ पे नो चेंज होगा, यहाँ पे ये
ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। देन वी हैव turmeric, that is haldi, which is naturally of yellow color. Is when added to acid, what do you think will happen? No change, no change occurs. But when this turmeric is added to a base, it turns reddish brown. You might have seen when a curry falls on your clothes and you apply some soap on that, it turns red brown. You can try this yourself. You can take some turmeric in a plate, and in that you can add soap solution, or you can just take some pinch of turmeric and then apply it on the soap. You'll see yourself that it turns reddish brown because the soap is basic in nature. But it's not a base. I'll tell you what is it in the following video. Then we have cabbage. It is also one of the natural indicators, as I told you earlier. It is of a red color naturally, you know, red cabbage. Then it turns green when it is added to base. ये ग्रीन कलर की हो जाती है जब इसको हम बेस में ऐड करते हैं, और इसमें ये कोई चेंजेस शो नहीं करती, ये रेड की रेड ही रेड। आई होप दिस मच इज क्लियर। देन वी कम टू मिथाइल ऑरेंज। दिस इज वन ऑफ द सिंथेटिक इंडिकेटर्स, है ना। तो मिथाइल ऑरेंज इज naturally of the, as the name suggests, it is orange in color, and when it is added to acid it turns red, and when it is added in base it turns yellow. So you can remember like पहले एसिड में डाल के जो कलर है वो डार्क हो रहा है और बेस में लाइट हो रहा है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो उसको। ऑरेंज का एसिड में डाला डार्क हो गया, रेड हो गया, और बेस में डाला तो लाइट हो गया, ऑरेंज येलो हो जाएगा, है ना। इस तरीके से यू कैन रिमेंबर दिस। देन phenolphthalein, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द synthetic indicators, है ना। तो इट्स नेचुरली ऑफ नो कलर, मतलब ट्रांसपेरेंट कलरलेस होती है ये। जब इसको हम बेस में ऐड करते हैं तो ये पिंक कलर की हो जाती है, और इसमें कलर ऐसी रहती तो नो चेंज। या देन अभी और फैक्ट्री इंडिकेटर पढ़े थे, तो वनीला वाज वन ऑफ देम। वनीला को जब विन बी एड इन बेस, इट हैज नेचुरली नो स्मेल, इससे, है ना। अब जब हमने इसमें एसिड में डाला स्मेल चेंज हो जाती है। स्मेल चेंजेस व्हेन एडेड टू acid, and the smell remains the same or no smell in base. ये olfactory indicator होते हैं, इसलिए इनको अलग कैटेगरी में डाला गया क्योंकि ये स्मेल चेंज करके बताते हैं। बाकी सब ने अपने कलर चेंज करे थे ना, एज वी सॉ इट अर्लियर, इन सब ने अपने कलर चेंज करे थे, बट इन दिस, इसमें क्या हुआ, the smell was changed. So you can just note this all and then I'll rub it. So you can just either take a screenshot or you can just note this down. If you note it, it will be better for you because you won't take more time and you can make your notes hand in hand. So just take this screenshot or note. Then we move further. Then I told you about other olfactory indicators as well, now. So let's just study about them as well. So yeah, clove. In Hindi it is known as long. So it has different smell. यहाँ पे एक लेट्स से एक स्मेल थी ए, यहाँ पे हो जाएगी स्मेल बी, यहाँ पे सी।
तो तीनों में अलग अलग स्मेल होती है, इसकी स्मेल की पहचान होती है, दैट इज टोल्ड एंड universal indicators is pH system which we study further. With the Thabas, abstract for the colors of olfactory indicators. So after learning about all the color chains in different acids and base, now we can perform this activity which is given in NCERT. So here we have to collect the solutions from the science laboratory, and the solutions are HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, KOH and MgO2 whole twice. जो भी आपको this just written because you cannot perform this now at home, so you can just see what I'll tell you. Then what we have to do is we have to take drop of each solution on a watch glass, and then we have to add a drop of indicator in that. फिर हमें जो कलर्स की चेंज मिलेगा दैट विल बी आर ऑब्जर्वेशन टेबल. ओके, और अभी मैंने आपको कलर चेंज बता दिया, तो यू कैन मेक अप ऑब्जर्वेशन टेबल इजीली without even doing this experiment. So I hope this is clear. Then these indicators tell us whether the substance is acidic or basic in color. Okay, then there is one more activity. Activity 2.2 is about take some finely chopped onion in a plastic bag along with some strips of clean cloth. And then what we have to do, हमें कटी हुई प्याज लेनी है, अनियन, उसको हमें एक बैग में रखना है, एयर टाइट बैग में, विथ सम क्लॉथ स्ट्रिप्स. रेफ्रिजरेटर में थोड़े टाइम के लिए रखना है, ओवरनाइट. एंड देन उसके बाद मॉर्निंग में वो क्लॉथ स्ट्रिप्स आप निकाल सकते हो. देन यू कैन जस्ट दे आर रेडी, वो आपकी इंडिकेटर स्ट्रिप्स रेडी हो जाएंगी. आप उसको एक एक करके एसिड में डाल के और बेस में डाल के देख सकते हो. एंड देन यू कैन नोट योर ऑब्जर्वेशंस. And what you will observe is that in acid the smell remains the same, and in base they lose their smell. Okay, so this is our observation for this activity. Now we'll study about the chemical nature of acid and base. So first type of chemical property is when the acid reacts, acid and base हम इन दोनों का करके देखेंगे अलग अलग. रिएक्ट विद मेटल तो क्या होता है ना. तो सबसे पहले हम एसिड का देखेंगे, फिर हम बेस का. सो फॉर एसिड प्लस मेटल, इट विल फॉर्म, ये जनरल इक्वेशन है जो कि सारे एसिड और मेटल्स पे अप्लाई होती है. यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, एंड फिर अगर इफ एनी क्वेश्चन कम्स यू कैन जस्ट इजीली राइट इट. तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सिर्फ लाइक H2SO4. ये वाली एक्टिविटी वॉज गिवन इन द फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो. यहाँ पर मेटल हमने ले लिया जिंक Zn, फिर हमने इसको रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिलेगा, Zn विल डिस्प्लेस H2 फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन. ये हमें डाइल्यूट एसिड लेना है. अब डाइल्यूशन क्या होता है अभी बताते हैं. ZnSO4 बना, दिस इज अ सॉल्ट, and H2 is liberate. Okay, so this is how what happens. Now the first thing is diluting हमें क्या लेना है, वाटर लेना है खूब सारा, उसमें थोड़े से ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालने हैं, तो ऐसे हमारा एसिड डाइल्यूट होता है. नाउ हाउ इज दैट डन, आई टेल यू फर्दर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ लेते हैं. इसमें हमने क्या करा, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा. ये तो यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स फॉर दिस, लाइक लेट्स टेक HCl. HCl is also an acid, it has H plus ions. Then you can take any metal you want, just think what metal you want, take any that is sodium. हमने इसको रिएक्ट कराया तो ये बनेगा
NaCl प्लस H2। ये क्या है? सॉल्ट है। दिस इज द कॉमन सॉल्ट। ये भी ईट दिस सॉल्ट इन आर फूड आल्सो ना, and hydrogen gas is liberated. ये general equation is the thing which you need to remember all the times. This is the main equation for this reaction of acid with metal. Acid reacts with metal to form salt and hydrogen. Clear? The next is reaction of base with metal. So now we will study about that. Base has a bit different case. जब हमने base को रिएक्ट कराया, ये कुछ ही मेटल्स के साथ रिएक्ट होता है। सब मेटल्स जो कि बहुत रिएक्टिव होते हैं उन मेटल के साथ ही रिएक्ट करता है बेस बस। और ये भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब एसिड में क्या था, वो सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट कर देगा, है ना, बट इन बेस ये कुछ ही मेटल के साथ रिएक्ट करता है, लाइक जिंक। तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास बेस होना चाहिए, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि इसमें OH माइनस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास मेटल होना चाहिए, लाइक Zn। तो हमने इसे रिएक्ट कराया, दिस इज एक्वस, दिस इज सॉलिड, जिसमें ऐड करा, इट विल फॉर्म सोडियम जिंक Na2ZnO2। ये सॉलिड बनेगा, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस विल बी liberated। ये सॉल्ट है, दिस इज हाइड्रोजन। सो यू कैन जस्ट सेम है, बट और सारे मेटल के साथ नहीं करेंगे। और अब नाउ वन मोर थिंग इज देयर। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन मिल जाता है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में मिल जाता है हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन हम बता कैसे लगाएंगे कि ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। सो टू नो दैट हम हाइड्रोजन गैस को विल पास इट थ्रू soap solution. So to find the gas liberated as hydrogen, we'll take that, हम क्या करेंगे, we'll take for example एक बीकर में रिएक्शन हो रहा है, not a beaker basically, let's take a conical flask लिया हमने एक, इसमें हमारा वाटर था, डाइल्यूट एसिड है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, ठीक है ना, लाइक HCl। और यहाँ पे हमारे पास कोई मेटल है लाइक Zn, जिंक ग्रेन्यूल है यहाँ पे, इसको हमने कोर्क से बंद कर दिया है। ये एक्टिविटी आप अब क्या करोगे आप, जस्ट एक इसमें आप क्यूब लगा लोगे, डिलीवरी क्यूब, यहाँ पे एक बीकर रखा है, बीकर में हमने क्या भर रखा है, सोप सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये डिलीवरी ट्यूब है। तो हमने इसमें क्या भर रखा है, सोप सॉल्यूशन भर रखा है। अब हमने ये रिएक्शन अभी पढ़ा था कि यहाँ पे हमें जिंक मिला है, Zn प्लस HCl क्या फॉर्म करेगा, ये है एसिड, ये है मेटल, मेटल प्लस एसिड विल फॉर्म सॉल्ट, सॉल्ट होगा ZnCl2 प्लस बैलेंस कर दो कुछ, है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से लिबरेट होके इसमें से पास हो जाएगी, है ना, पास होगी तो यहाँ पे आ जाएगी सोप सॉल्यूशन में। फिर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ऑब्जर्वेशन के बाद ही पता चलती है, और से कैसे पता है, ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलती है, देखने की बात करी तो हाइड्रोजन गैस जब इसके अंदर घुसेगी ना, तो इट विल पास इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स की फॉर्म में वो बाहर निकलेगी, तो यू कैन फाइंड इट आउट दैट दिस इज हाइड्रोजन गैस। ओके, दैट्स ऑल इन दिस एक्टिविटी, नथिंग एल्स इज देयर। एक और चीज़ कर सकते हो, you can just get to know that whether it's in hydrogen gas or not.
what you can do is take a burning splinter again. यहाँ पे हमने सोप सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं डाले फिर, है ना, यहाँ पे पानी को सीखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जा रही है. we'll take a burning splinter. ठीक है ना, ये क्या है, बर्निंग कैंडल ले लो, स्प्लिंटर कैंडल वॉटेवर, है ना. तो ये बुझ जाएगी, इसके पास जाके कैसे बुझेगी, विद अ पॉप साउंड. इट विल गो ऑफ विद अ पॉप साउंड. स्प्लेंडर बुझ जाएगा और बहुत ज़ोर से पॉप की साउंड होगी. तो इससे यू कैन फाइंड आउट दिस इज हाइड्रोजन गैस बीइंग लिबरेटेड. सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर. तो आज हमने क्या पढ़ा, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दैट. तो आज हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा एसिड बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की. एसिड सॉर होते हैं और बेस बिटर होते हैं. देन इसमें OH माइनस की कंसनट्रेशन होती है, इसमें H प्लस की कंसनट्रेशन होती है. फिर हमने पढ़ा कि इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4. कौन से. Number 1 was natural indicator, then we studied about synthetic or artificial indicators, and olfactory indicators and universal indicators. If you have any problem, then you can watch this video again or you can ask your doubts in the comment section. फिर हमने पढ़ा एसिड और बेस का रिएक्शन कैसे होता है. तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जो मेटल है वो भी बहुत रिएक्टिव होना चाहिए, तभी रिएक्ट होगा, अदरवाइज कोई रिएक्शन नहीं होगा. वो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा. तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे एंड देन वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. उसमें मैं आगे क्या आपको केमिकल रिएक्शंस एसिड और बेस की पढ़ाऊँगी. टिल देन बाय.